ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੂਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੂਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੂਵੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੂਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੂਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਚ ਸਮਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਸਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ, ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਪਚ ਮੂਏ, ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਸੇ, ਕਹੇ ਪਚੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਹਜੀ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਪੌੜੀ। ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ, ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਕੈ ਖਾਮ ਦੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜਕ ਸਤ ਤਿਨੀ ਢਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੈ, ਤੁਧ ਉਤੈ ਕੰਮ ਓਏ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਨ, ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵਾਇਆ। ਹਰ ਚੀਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਟੰਡਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਨ, ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰ ਚੀਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਟੰਡਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। 7 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। 33 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ 1 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅੰਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅੰਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੂਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੂਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੂਵੈ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ।
और बहुत सारे जिन्ने आपां इनकलूडिंग माई सैल्फ मैनू विचे गिन के ये गल मन लेनी चाहिए है कि सानू भी हुक्म की समझ नहीं आई। जे हुक्म की समझ आ जाए तो फिर सानू जिंदगी विच ये दुख, ये तकलीफ, ये चिंता, ये फिकर, ये उतार, ये चढ़ा कदी भी नहीं आउणगे। आउंदे क्यों ने? क्योंकि हुक्म समझ नहीं आया। परमेश्वर ने, मालिक ने, उस कादर ने इस कुदरत की रचना बहुत एक ढंग नाल कीती है। ख्याल करना, उस कादर ने जिथे होर चीज़ां बनाईयां उत्थे इंसान भी बनाया, पर इंसान नूं उसने अवारा नहीं छड्डिया। जिहड़ी गल समझण वाली है, इंसान नूं अवारा नहीं छड्डिया। उहदे उत्ते मालिक दा अपना हुक्म चल रहा है। जिहड़ी गल सानू समझण दी लोड़ है, इंसान नूं उस मालिक ने अवारा नहीं छड्डिया। जंगलां दे जानवर अवारा हुंदे ने, उन्हां दी जीवन दी कोई मर्यादा नहीं हुंदी, उन्हां दे जीवन दा कोई ढंग भी नहीं हुंदा। वो अपनी मर्जी नाल जीवन जीव लेंदे ने। पर इंसान ते उहदे विच एक बहुत वड्डा फर्क है। जिथे इंसान नूं मालिक ने सरदारी बख्शी, उत्थे इस नूं उहने अपनी अधीनता भी बख्शी। जदों इंसान मालिक दी अधीनता कबूलन तो इनकारी हो जाता है, इहदा मतलब उहदा हुक्म मनन तो इनकारी हो जाता है। जदों कहंदा हाँ रब की हुंदा है, रब किहने वेखिआ, इंसान दी सोच जदों इहो जिहा काम करदी है, इसदा मतलब वो अवारा जंगल दे जानवरां वांगू, पंछियां वांगू अवारा हो गया ते हुक्म मनन तो इनकारी हो गया। ते जदों हुक्म मनन तो इनकारी हो जाए, फिर उसदी जीवन विच कदी भी सहज नहीं आ सकता। जीवन विच कदी सहज नहीं आ सकता। हजूर कहन लगे, देख मालिक ने तेरी रचना हुक्म विच कीती, ये जी जंत हुक्म विच पैदा होए, उसकी नज़र कईयां उत्ते हुई ते कई उस नज़र तो खाली रह गए, क्योंकि हुक्म मनन तो इनकारी हो गए। जप दी बाणी जदों आपां पढ़दे हां, हुक्मी होवन आकार, आकार दा मतलब ऐ पसारा। लफ्ज आकार नहीं है, लगा होया कन्ना बोलिया जाता आकार। पाठ करन लगे असीं उहनूं अक्सर आकार ही पढ़ते हैं। ये गलती आम साडे परिवारां विच, घरां विच हुंदी है। पर क्योंकि कन्ना लग्या होया है, कन्ना ला के ही इहदा पाठ होएगा आकार। ते कहंदे हुक्म के दस्या भी नहीं जा सकदा। हुक्म विच जी पैदा होए, हुक्म विच वडियाई मिली। ते गुरु पातशाह ने जदों तत कढ़िया, कहंदे असल विच उसदे हुक्म विच ही सब कुछ है। पर सब कुछ नूं समझण वाले बहुत घट हन। ते जे समझ लवे, नानक हुक्मे जे बुझे तां होमे कहे ना कोई। पढ़ते हैं ना जप दी बाणी, ते साहब कहन लगे समझ ही इहो ही नहीं आई हुक्म की है। हुक्म उसदा कादर दा कंट्रोल है, जिस दे अधीन असी जिंदगी नूं बसर करना है। जदों जिंदगी बेलगामी हो जाए, कदी घोड़े दे सवार नूं देखो, बड़ा भी तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाउण वाला होवे, घोड़ सवार, ते घोड़े दी लगाम उहदे हत्थ विचों छुट जाए, तो फिर घोड़ा उहदे काबू विच नहीं आउंदा।
जिस घोड़े नूं वो दौड़ाउंदा है उही घोड़ा चुक के उहनूं थल्ले पटका के मार दिंदा है। इसका मतलब की है, बेतरतीबा बेघड़िया जीवन भी जिहड़ा हुक्म विच नहीं आया, उस तरह ही है जिवें एक घोड़े दे सवार विच उहदी लगाम उहदे हथ विच नहीं आई, उस तरह ही है। इसका मतलब हजूर कहन लगे, गुरु अमरदास पातशाह, बंदिया हुक्म नहीं समझिया, तेनू समझ नहीं आई, हुक्म मन्निया होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। आनंद साहब पढ़ते हैं ना, आनंद साहब की बाणी विच भी मालक यही गल कहंदे ने, कहंदे तेनू समझ नहीं आई, हुक्म की चीज है, हुक्म किवें मनना है। अगली गल थोड़ी जी आपां करके अगे नूं चलीए। हुक्म है परमेश्वर दे गुणां दे जो खजाने हैं उन्होंने अपने जीवन विच धारण करना, हुक्म की चीज है। उस दे गुणां वर्गे अपने गुण बनाने, उस दे सुभाव वर्गा अपना सुभाव बनाना। वो निरभो है ते सानू निरभो बनन दा जाच गुरु दस रहा है। वो निर्वैर है, उहदा गुण निर्वैर है, ते की असी निर्वैरता दा गुण धारण कर लिया? पल पल ते साडे अंदर विरोध है, एक एक खिन विच असी विरोध दी अग विच सड़ रहे हां। दूजे दा माड़ा किवें करना है, उसका नुकसान किवें करना है, वो एडा वड्डा क्यों पहुंच गया है, वो बुलंदियां नूं क्यों छू गया है, उहदे कोल दौलत क्यों आ गई, उहदे कोल सवारियां चंगियां क्यों आ गईयां। ये सारी सानू अंदरों साड़ रही है। ये वैर दी विरोधता दी अग नाल भांबड़ साडे अंदर मच रहे हैं। गुरु पातशाह ने आप बाणी विच एक गल लिखी है, दावा अगन बहुत त्रिन जाले, कोई हरियो बूट रेहो री। दावा अगन जंगल नूं अग लगी हुई है, ते लगी हुई संसार दे जंगल दी अग विच कोई विरला ही है जिसने हुक्म नूं मनना सीख के निर्वैरता दा गुण अंदर धारण कर लिया है। हजूर कहंदे ने वो मिठ बोलड़ा है ते साडी जबान कौड़ी है। इसका मतलब हुक्म विच चलना नहीं सीखिया। जदों असीं गल पढ़दे हां ना, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मूरा, हूं संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने, उहदी डिक्शनरी विच कौड़ा शब्द है ही नहीं। ते की मेरी जबान मिठी हो गई है? कि मेरे अंदर ये गुण आ गया है कि मेरी जबान तो कभी कौड़े वचन नहीं निकलते? नहीं, ऐसा नहीं होया। ऐसा ना होने का नतीजा ही गुरु अमरदास जी कहते ने, हुक्म की समझ नहीं आई। हुक्म की समझ आ जाती, तेरी जबान भी मिठी हो जाती। जिसका नाम जपदा है वो तो मिठा है, वो तो बहुत मिठा है, ते जबान कौड़ी है। रसना कौड़ा बोल बोले। हर समय कई बार आप देखते हैं, मैं हैरान होना है, असी गृहस्थी परिवार हाँ ते जीवन विच घर विच ही बहुत सारे लोग आपो विच गाली गलोच ही हर गल गाल कढ़ के करी जाते हैं कि ये हुक्म मनण वाली गल कर रहे हैं कि उन्होंने जीवन में सुख आ सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अमरदास पातशाह जी निर्णय करके गल दसते हैं, कहते हुक्म समझ, हुक्म विच संसार होया, हुक्म विच तेरा आकार होया, हुक्म विच तेरे ते नदर हुई है, हुक्म विच ही तू चलना है। ते जे तैनू हुक्म दी समझ नहीं आई फिर तेरे जीवन विच कदे सुख नहीं आ सकेगा। निर्णय है गुरु पातशाह जी का। ते पहली पंक्ति जिहड़ी आपां पढ़ी है, हुक्म ना जाने बहुता रोवे। रोवे का अर्थ नहीं भी तहा मार के रोना, रोना का अर्थ कल्पना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
कोई बंदा आके साडे नाल गल करदा ना, अपना दुखड़ा ही रोई जाता, दुखड़ी गल्लां करी जाता, कलपी जाता है, तो असीं सह सुभाए कर दिंदे, एवें क्यों रोई जाना, कोई चंगी गल कर। मतलब जिहदी जीवन विच शांति नहीं है, जिस दे जीवन विच सहज नहीं है, जिस दे जीवन विच हमेशा कल्पना है, जद तक हुक्म दी समझ नहीं आई जीवन विच सहज नहीं आ सकेगा। डिगन डोला तो लो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्रामा। गुरु अर्जन देव पातशाह का शब्द है, कहते इंसान डिगदा डोलदा डकोले तां खांदा है जिन्नी देर तक ये हुक्म नूं नहीं बुझदा। जब लग हुक्म ना बुझता तब लग तो दुखिया। जिन्नी देर हुक्म नहीं चलता उहदे हुक्म विच चलना नहीं सिखिया। जिन्नी देर तक आप ये गल कहने जिहड़ी रोज पढ़ते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ते ये चलना किने है? किसी नूं सुना रहे हैं, किहनूं सुना के रहे हैं? पढ़ के पढ़ असी रहे हैं, सुना असी दूजे नूं रहे हैं। बाणी असी पढ़ते हैं, जब असी बाणी का पाठ कर रहे हैं, पर हुक्म रजाई चलना सिखा के नूं रहे हैं कि साडी भैड़ जिंदगी दी ओदी हुक्म विच आ गई। बंदे जरा दिल नूं खोज तां सही, सवाल अपने आप नूं कर ते अपने आप दी परख रोज कर। तां ही महाराज दी बाणी ये गल कहंदी है ना, बंदे खोज दिल हर रोज न फिर परेशानी माहे। चिंता विच ना तुरिया फिर, क्यों एवें चिंता भी तुरिया फिरदा है? अपने जिंदगी की खोज खोज इनू। कल किथे सी, अज किथे है, अज किथे है, कल किथे होना चाहिए है। सत संगत ये नहीं 20-20 वरे 25-25 वरे बीत जान, गुरुद्वारे दे दहलीज दे उत्ते गुरु अगे नमस्कार करदियां होया ते जीवन अजे सहज ना आवे तो समझ लेना चाहिए किते कुछ कमी है, कुछ कमजोरी है, कुछ किते ना किते साडे अंदर ऊनता ही है। आ जाना चाहिए सी। गुरु अंदर तो कोई कमी है नहीं, जिथे भी कमजोरी सिख कोल है, ते जे सिख कोल कमजोरी है तो अपनी कमजोरी नूं देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ते गुरु पातशाह गुरु अमरदास जी कहते देखो भाई, हुक्म नहीं समझिया ते हुंदा की हो जे मनुख की हालत की है? अंदर धोखा नींद ना सोवै। धोखा दा अर्थ है चिंता, अंदर चिंता नाल भरिया होया है ते नींद कित्थों आएगी? नींद का मतलब है नहीं रात नूं नींद आउणी, इहदा मतलब है नहीं भी रात किते बिस्तरे दे उत्ते उहनूं नींद नहीं आउंदी। भाव जीवन दी इस कहानी विच ओहदा जिंदगी कदी भी आराम नाल बतीत नहीं होंदी। नींद का अर्थ की हुंदा है? आराम करना, सोना, रेस्ट करनी। आपां ये कहने फलाना सौ गया, नींद आ गई है, भाव आराम कर रहे। ते जिस मनुख दे अंदर चिंता है, ना उसनूं दिने चैन आउंदा है, ना उसनूं राती चैन आउंदा है। दिने भी टिका नहीं, ना राती उसनूं नींद है। रात की नींद उड़ गई, दिन का सहज संतोख उड़ गया। जिंदगी तो इस तरह बीत रही है, जिंदगी की कहानी कुछ इस तरह की बन गई। ते साहब कहने लगे इस मनुख की हालत की है? अंदर दुखी नैनी सुखी। लोगों को दिखाने लई बड़े ड्रामे करता है जी, मैं तो बड़ा खुश हाँ। ते हजूर कहते अंदर दुख नाल भरिया होया है ते अखां देख के दसदा भी बड़ा मैं सुखी हाँ। मूल ना उतरे भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। नानक सच्चे नाम बिन, वाहिगुरु की बंदगी तो बिना चिंता नहीं हट सकती। हुण चिंता कादी है? हर समय दुख है, हर समय चिंता है, जन्म की चिंता है,
मौत की दुख उहदी तकलीफ है। हुण इहनूं समझ ही नहीं आई, ना जन्म तेरे अपने हथ विच है, ना मौत तेरे अपने वस विच है। गल समझ नहीं आई। जन्म भी मेरे मालिक परमेश्वर के हथ विच है, जिसने कादर ने कुदरत नूं बनाया है, ते मौत भी उसके हथ विच है। दुनिया की कोई ताकत तेनू मार नहीं सकती, कोई ताकत भी। केवल एक मालिक का हुक्म होएगा, मौत आ जाएगी। ते जीवन की कहानी अमरदास सच्चे पातशाह अंदर चिंता है, उहदे जिंदगी विच चैन नाम की कोई चीज नहीं। जिसने हुक्म मनना नहीं सीखिया, वो कदी टिका नाल बहिंदा ही नहीं। हुक्म मनना ते हुक्म के अनुसार जीवन जीना, ये बड़ा जरूरी है, जो इस पावन श्लोक की पहली पंक्ति विच पातशाह ने सानू सिक्ख्या दिती है। हजूर कहंदे अंदर धोखा नींद ना सोवे, पर नाल हुण अगली गल कही, जे धन खसमै चले रजाई। भी जे जीव रूपी स्त्री, धन दा अर्थ है जीव रूपी स्त्री, मालिक की रजा विच चलना सीख जाए तो फिर की होएगा जी। दर घर शोभा महल बुलाई, दर घर शोभा महल बुलाई, उस दे दर ते इत्थे घर विच भाव संसार विच ते मालिक दे दर उत्ते दो चीज़ां पातशाह ने लिखियां। बंदा संसार विच मान चाहुंदा है, वडियाई चाहुंदा है, हर बंदा चाहुंदा है भी मेरी वडियाई होवे। ते साहब कह लगे जे जीव रूपी स्त्री मालिक दे रजा विच चलना सीख जाए ते मैं विश्वास भरोसा यकीन दिवाउंदा हां कि इस दर घर विच भी ते उस दे दर उत्ते भी उहनूं मान ते वडियाई मिलदी है, उहनूं मान ते वडियाई मिलदी है। ते नाल अगे लिखिया महल बुलाई, महल बुलाई। बुलाई दा अर्थ की हुंदा? बुलाना, आदर सहित बुलाना। जेड़ा उहदी रजा विच चलना सीख जाए, मालिक परमेश्वर भी उहनूं आदर सहित ही बुलाउंदा है। देखो कितनी वडियाई मिली। जे जीव रूपी स्त्री रजा विच चलना सीख जाए तो कितना मान मिलता है। तो फिर समझ लेना चाहिए कीता करना सर्ब रजाई, जे किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किशू ना होवे, जो हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही, जे किछ कर हम साके, ज्यों भावे त्यों बख्श। ये अरदास तो करनी बनती है ना। जदों अरदास अंदरों निकलेगी, शब्द निकलणगे, ते साडे वस विच नहीं, मालिक रजा विच तू आप राजी रख, ते फिर मालिक आप त्रुठ के बख्शिश करदा है। तकलीफ तो यही है भी साडे अंदरों ये अरदास निकलती नहीं। दुख इस गल का है, असी होर बहुत कुछ मंगते हाँ, हर चीज मंगते हाँ, दुनिया का हर पदार्थ मंगते हाँ, कदी ये नहीं मंगया मालिक जिस रजा विच तू रखे मैं उस रजा विच राजी रहांगा। ये नहीं मंगया। मंग लेंदे तो शायद अज जीवन विच जो कुछ साडे कोल है जां नहीं है, साडा जीवन सबर ते संतोख नाल भरिया होया हुंदा। ते ख्याल करो, ये दुनियादार मनुख की सोच छोटी है, इहदियां अखां बड़ियां छोटियां हन। ते शेख सादी ने जदों लिखी एक गल, कहन लगा दुनियादार मनुख दियां तंग अखां केवल दो चीज़ां नाल भर सकदियां हन, एक कबर की मिट्टी नाल ते दूजा संतोख नाल। जां तां संतोख आ जाए, रजा भी चलना आ जाए, तो तां इहदियां अखां भर जांदियां ने, ते जां फिर कबर की मिट्टी उत्ते पै जाए तो फिर अखां भर जांदियां ने, उदों ही भरदियां ने। इंसान दे अंदर जिसने हुक्म च चलना सीखिया संतोखी हो जाता है। वो फिर बार 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 होर मंगा नहीं रखता, केवल इको ही मंग रखता है, मालक विसर नाही दातार
अपना नाम दियो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। ये मंगदा है, वो रजा विच राजी रह के ये गल मंगदा है। साहब जी बचन करदे, नानक करमी ए मत पाई। करमी दा अर्थ है बख्शिश। मालिक तेरी बख्शिश नाल ही मैनू ये सोझी आ सकती है। ख्याल करियो, अपनी सियाणप नाल हुक्म विच नहीं चलिया जांदा। अपनी सियाणप नाल हुक्म विच हजूर पातशाह वचन करते हैं, गुर प्रसादी सच समाई। गुरु की कृपा नाल ही सच्चे वाहिगुरु विच सच विच लीन हो जाता है। केड़ा? जिस उत्ते मालिक ने अपनी नदर करम बख्शिश कर दी है। महला तीजा, मनमुख नाम विहूणिया, रंग कसुंबा देख ना भुल। मनमुख का अर्थ है मन की मत पिछे चलन वाला। यह हुक्म ना मनन वाले का विरोधी शब्द है मनमुख। एक है सन्मुख, जिहड़ा गुरु के सन्मुख है। एक मनमुख जिहड़ा मन दे वल जिहदा मूँह हुंदा है, गुरु वाल मूँह नहीं हुंदा, उहनूं मनमुख कहंदे ने। जिहड़ा अपनी मन की मर्जी मुताबक जीवन बसर करना लोड़दा है। ते हजूर कह लगे, गुरु अमरदास पातशाह, वे मनमुख बंदे देखो, नाम तो सखने, नाम विहूणिया दा मतलब विहूणा खाली, नाम तो खाली, नाम तो सखने मनमुख मनुख। रंग कसुंबा देख ना भुल। कसुंबा शब्द गुरबाणी च बहुत बारी आया है। एक मजीठ शब्द आया, एक कसुंबा शब्द आया। दोने विपरीत शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। कसुंबा ते मजीठ शब्द विरोधी शब्द हैं। भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश विच जदों कसुंबे दे अर्थ कीते ने, ते कहंदे ने अग दी चमक जिस तरह हुंदी है, अग दी चमक, इस कसुंबे दे फुल दी चमक इसे तरह ही शोक लगती है जिवें अग दी चमक हुंदी है। भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश विच जदों कसुंबे दे अर्थ लिखे, बड़े कमाल दे लिखे। कहंदे अग दी चमक किन्नी हुंदी है, ते कसुंबे दे एक फुल है जिहदी चमक भी इस तरह हुंदी है, पर जे धुप पै जाए ये फुल तां भी डिग पैंदा, जे रात पै जाए तो यह फुल तां भी डिग पैंदा है। भाव इहदी लाइफ कोई नहीं हुंदी। शोखा जिहदी लाइफ कोई नहीं, जिहदी जिंदगी बहुत छोटी है, ते भुलेखा पै जांदा है। इंसान भुलेखा खा जाता कसुंबे नूं देख के। जगत दे पदार्थ भी कसुंबे वर्गे हैं। भाई साहब जी, भाई गुरदास जी ने बहुत उदाहरण दित्तियां। कह लगे कदी हिरन वेखिया, किन्ना भुलेखा खादा हिरन ने। तेज दोपहर तपदी हुई बलदी हुई शिखर दी गर्मी, तपश सूरज शिखर दे उत्ते ते रेत दियां किनकां दे उत्ते जदों सूरज दियां किरणां पैंदियां ने, ओह लगदा जिवें पानी दा दरिया चलदा हुंदा है। कह लगे हिरन ने भुलेखा खादा। प्यासा होया हिरन पानी दी तलाश विच उधर नूं भज्या जिधर रेत चमक रही सी, ते सारी जिंदगी जितना समा सी भजदियां भजदियां ही मौत हो गई, पानी फिर भी नहीं मिलिया। मिर्ग तृष्णा की गल की भाई गुरदास जी ने। फिर दूजी गल की, कहंदे कदी बाजीगर दी खेड़ तमाशा देखिया। बाजीगर जदों तमाशा आउंदा है, जादूगर जदों तमाशा करते ने, रुपइया पैसों के ढेर ला देंदे हैं। कदी किहदे कंन विचों पैसे कढ़ लैंदा है, कदी कितों पैसे कढ़ लैंदा है बाजीगर जादूगर। ते कहंदे जदों तमाशा खत्म हो जाता है ते फिर उही जादूगर लोकां कोलों मंगण लग पैंदा है। ते उहनूं सवाल कीता, जादूगर हुणे तू रुपया पैसों के ढेर ला रहा सैं, हुण तू लोकां कोलों मंगण लग पिया। कहण लगा जादू दी खेड़ सी, असल विच देखण नूं कुछ होर हुंदी है, असल विच ओहदी कुछ होर ही हुंदा है। बाजीगर दी खेल जो सब कूड़ तमाशा, थल विच तपन भट्ठियां क्यों लहे प्यासा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे कदी तपदियां होईयां भट्ठियां रेत दियां प्यास मिटा सकदियां हन,
कदी बाजीगर दी खेड़ सच्ची कही जा सकती है? बिल्कुल इसे तरह कसुंबे दे रंग विच फसिया होया मनुख भी जीवन की बाजी हार जाता है ते इन्हां पदार्थां विच ही खचत होकर जीवन के आखिरी श्वास पूरे कर जाता है। ते साहब कहन लगे, वे मनमुख नाम भी होणिया ते कसुंबे दा रंग देख के भुलेखा ना खा। ए जगत दे पदार्थ कसुंबे दे वर्गे हन, जिन्हां नूं तू अपना अपना कहना है, जिन्हां नूं तू मेरा मेरा कहना है, ये तेरे नहीं हन। गुरु पातशाह ने बड़ा खूबसूरत भजन लिखा राग बिलावल विच, कहंदे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कसुंबा रंगला काहे भूल लागे। बिलावल राग का शब्द है, मिरत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कसुंबा रंगला काहे भूल लागे। कसुंबा कच्चा रंग कसुंब का, थोड़िया दिन चार जियो। दिन चार का मतलब बहुत थोड़ा जिहा। ते फिर कहंदे सच्चे पातशाह जी, बार बार मन च कई बार असीं शब्द कसुंबे दे सुनते हैं, हथ ना लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला। आम शब्द भाई सुरजन सिंह जी पढ़ते होंगे सी, आसा की वार विच भी उन्होंने शब्द पढ़िया। कसुंबड़ा की है? जो देखण विच बहुत वधिया होवे पर असल विच कुछ भी ना होवे, उहनूं आपां कसुंबा कहने। इसका रंग दिन थोड़िया छोछा, इसका मुल छोछा कोई कीमत नहीं। कहते जिंदगी भी थोड़ी ते कीमत भी कोई नहीं। दूजे लगे पच मूए, मूर्ख अंध गवार, विष्टा अंदर कीड़ से पे पचे वारो वार। गल बड़ी गुरु पातशाह गुरु अमरदास जी ने जिहड़ी कीती, ते जे समझांगे तो बड़ी तकलीफ जरूर होएगी, सानू जरूर होएगी। कहंदे देखो, दूजे लगे पच मूए, मूर्ख अंध गवार, तीन चीजां वरतियां। मूर्ख भी लफ्ज वरत्या, अन्ना भी वरत्या, गवार भी वरत्या, ते लफ्ज इको नाल ही वरते सतगुरु पातशाह जी ने। परमात्मा की बंदगी तो बिना होर पदार्थां विच खचत होए मूर्ख अन्ने ते गवार लफ्ज वरते उन्हां लई। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਹਨ, ਗਵਾਰ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, कहते विष्टा भाव गंदगी। विष्टा नूं आपां सारे समझदे हां, व्याख्या ना कराया दी। कहते उहदे च कीड़े देखे कदी? हुण तां फ्लश सिस्टम आ गया। जदों पुराना समा सी, बाहर जांदे सी लोकी, जंगल पानी जो लफ्ज वरत लईए, उहदे छोटे छोटे कीड़े हुंदे सन। ते जदों इंसान विष्टा अपना करदा सी, मल मूत्र कह लो, उह चों कीड़े तड़फदे सन। फिर ते तड़फ तड़फ के व्याकुलता उहदे नाल तुलना की उस मनुख की गुरु अमरदास पातशाह ने जिहड़े वाहिगुरू की बंदगी नहीं करते, तुलना उहदे नाल कीती। सतगुरु जी दी वचन देखो, विष्टा अंदर कीट से केड़े। राग सोठ विच गुरु अमरदास जी ने एक व्याख्या की इसे गल दी। कहन लगे शब्द ना जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। भी जिन्हें गुरु की बाणी नाल शब्द नाल प्रीत नहीं की, अन्ना है, वो बोला भी है। वो संसार च आया या ना आया उसकी कोई वैल्यू नहीं। शब्द ना जाने, जाने का अर्थ नहीं भी आप रमाला चुक के दर्शन कर ले, शब्द आप कीर्तन सुन के चले गए, आप कथा सुनी कर ली, ना ना, ये नहीं इसका मतलब। शब्द ना जाने जिन्हां ने शब्द नूं समझिया नहीं, जिन्हां ने शब्द नाल प्रीत नहीं की, जिन्हां ने शब्द हिरदे नूं विन्निया नहीं। शब्द ना जाने, उन्हां दा जिक्र कीता।
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਮੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। कबीर सतगुर सूर में बाहा बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परा, परा करेजे छेक। ये हालत होंदी है। पर दूजे पासे साहब गुरु अमरदास जी कहते शब्द ना जाने से अन्ने बोले, से किते आए संसारा, फिर हर रस ना पाया, जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा, विष्टा के कीड़े विष्टा माहे समाए, मनमुख अंध गुबारा। विष्टा दे कीड़े उन्हां लई लफ्ज वरतिया जिहड़े शब्द नाल प्रीत नहीं पाउंदे। तो साहब सच्चे पातशाह जी दा बचन है, विष्टा अंदर कीट से पच पै पचे वारो वार तड़फदे हन, व्याकुलते हन, क्योंकि हुक्म भी चलना नहीं आया। जिवें विष्टा दे कीड़े तड़फदे हन, इवें ही नाम विहूणा इंसान भी तड़फदा है। नानक नाम रते से रंग ले, गुर के सहज सुभाए। हुण उन्हां दा जिक्र कीता जिहड़े रंगे होए हन, किहड़े विच? मेरे प्यारे वाहिगुरू दे नाम विच। हुण रंग किहड़ा? मजीठ दा रंग। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बौड़ ना हो भी भंग। वो टुटदा नहीं, खत्म नहीं होता, वो मजीठ दा रंग है। ते साहब कह लगे नानक नाम रते सिर रंगले, सोहणे हो गए। किहड़े? गुर कै सहज सुभाए। गुर कै सहज सुभाए, गुरु दे सुभाव मुताबक जिन्हां ने अपना सुभाव बना लिया। भगती रंग ना उतरै, सहजे रहे समाए। सत संगत फिर भगती का रंग उन्हां तो कदी नहीं उतरदा। ये कच्चा रंग तो है नहीं, जिहड़ा अज लगा ते कल उतर गया, जिते चढ़ गया वो चढ़ गया। काया रंगण जे थिए प्यारे, पाइए नाव मजीठ। रंगण वाला जे रंगे साहिब, ऐसो रंग ना दीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। ये उन्हां दा जिक्र है, रंगिया होया दा। रंगीले जेबा हर के नाए, वो बंदिया जबान ओदे नाम विच रंग लै, कूड़ियां ते गंदियां गालां ना कढ। इथों हर समय गंद ना बोल, गंद ना बोल, ओदे नाम विच रंग। ये रसना अन रस रचन लई नहीं, अन रस नाल तेरी प्यास नहीं मिटनी। ये रसना तू ओदी बंदगी कर, ओदे गीत गा, जिहदे नाल तेरी प्यास मुक जाएगी। साहब बचन करदे हन। पौड़ी सिष्ट पाई सब तुद आपे, सिष्ट पाई सब तुद आपे, रिजिक संभाया। भी तू कली सृष्टि पैदा नहीं की, रिजिक भी आप दिता है। हुण रिजिक लई एक माफ करना, एक आप शब्द पढ़ते हैं रहरास साहब जी की बाणी। काहे रे मन चित में उदम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। हुण इत्थे कई सवाल कर दिंदे है, जे जो ने रिजक लिख ही दिता तो फिर उदम करन दी की लोड़ है? जिहड़ी शब्दावली है ਉਹਦੇ समझण दे नाल ते भाव अर्थां दा बड़ा डूंगा फर्क है। हजूर ने उद्यम करन तो नहीं रोकया। हजूर ने क्या उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावंदियां सुख भुंच, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। ते रोकया किस गल तो है? कहंदे चिंता ते फिक्र ना कर, जो मालिक ने लिखिया तेनू मिल जाना है। उद्यम करन तो किते नहीं रोकया। ख्याल करियो, गुरु का सिख विलड़ नहीं, गुरु का सिख कीर्ति है।
ਵਿਹਲੜ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕਸਤ ਤਿਨੀ ਢਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁ ਵਚਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਛਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੱਲ ਛਲ। ਵੱਲ ਛਲ ਦਾ ਅਰਥ ਧੋਖਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆਈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਲ ਛਲ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2000 ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਲ ਛਲ। ਵੱਲ ਛਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਲ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਛੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਵੱਲ ਛਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤਿਨੀ ਢਾਇਆ। ਢਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ। ਕੁਸਤ, ਸਤ ਦਾ ਉਲਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਸਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਂਚੀ ਕਿਸ ਅਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਤੁਧ ਉਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੂੜ ਕਸਤ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਨਾ, ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਟੁੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ? ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ, ਘਰ ਦੇਤਾ, ਕੋਠੀ ਦੇਤੀ, ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਲਗਾਨਾ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਵਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ। ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਤੜਾਇਓ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਹੀ ਅੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।